Good evening, class. Today we are going to start a new chapter of class 11th, and that is the morphology of flowering plants. Okay, so in last video we have completed successfully the 7th chapter, but we have covered only most of the important topics and we left out the unusual topics which generally not comes in the exam purpose. So in this video we have to discuss the most important beneficial parts of flowering plants. Okay, as we know that in our nature there is a different types of plants, and most of the plants are comes in the two groups, angiosperm and gymnosperm. Okay, because some of the plants have the capacity of flowering and some of the plants have don't have the capacity of flowering. कुछ ऐसे पौधे होते हैं हमारे नेचर्स में जो फ्लावर्स को बियर करते हैं, मतलब उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जनरली फ्लावरलेस होते हैं, यानी फ्लावर्स नहीं होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फ्लावरिंग we have to study more detail in this chapter, and we will discuss all the things because we are going to start a new chapter of morphology. Okay, so in animals we have seen the most of the internal characters, and coming to the next phase we have to discuss two types of characters. The first characters is anatomy and second character is morphology. Okay, so anatomy characters means the internal characters. Generally when we study for any organisms or any human beings or any animals, that time we have to study the anatomy characters of any other species. But when we study the morphological structure means we have to study the outer structures of any human beings or any plants or any animals, that is comes in the class of morphology. Okay, so in this chapter mostly we will discuss the anatomy structure of plants also and morphology of प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, इसमें हमको प्लांट्स के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों स्ट्रक्चर्स देखना है। बट फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स विच इज कम्स एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को सबसे जो बेस्ड पोर्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो let it start from the flowering plants. Generally we know that flowering plants in our nature there is a different types of flowers are present in all over the world and plants also, but most of the flowering plants comes under the angiospermic group. Okay, in fungi and algae we have studied gymnosperm and angiosperm. So most of the cases the flowering plants comes under the angiospermic group. Okay, जितने भी flowering plants होते हैं वो angiospermic group में belong करते हैं because they have capacity of flowering, यानी उनके पास ऐसी capacity होती है जो flower को produce कर सकते हैं। ठीक है, so that's why they comes in the class of angiospermic group. So this is my first homework. You have to give me 10 examples of plants which is related with angiosperm. ऐसे 10 प्लांट्स के नाम आपको बताना है जो एंजियोस्पर्म ग्रुप्स में आते हैं और 10 ऐसे प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों अलग अलग ग्रुप्स में जो भी 10 प्लांट्स आते हैं, you have to do homework and send me in my personal WhatsApp. Okay, so according to the morphological structures of flowering plants, mostly flowering plants are generally comes under the angiospermic group, and in this there is a 3000 species are present approx. Coming to the next phase of flowering plants, अगर हम flowering plants की बात करते हैं, in our nature there is a more than 3 lakh, sorry not 3000, 3 lakh, more than 3 lakh species of plants are present. ठीक है, करीबन ऐसे 3 लाख के करीबन species जो हमारे environment में available हैं। ठीक है, so this is the most important features of any morphological of flowering plants. किसी भी flowering plants के लिए सबसे important है we have to study the proper way of morphology. morphology का मतलब क्या होता है? ठीक है, so morphology is a word, firstly it is come from the Greek word gr. It is a word which is related to Greek, and Greek is a Latin word. ठीक है, which cannot be changed. morphe मतलब होता है form, मतलब वो कैसा form करते हैं या इनका form जो है कैसा दिखता है। ठीक है, form मतलब होता है उसका appearances. appearances मतलब कोई भी organism है या कोई भी plants है, so forms मतलब उनका जो structures है, जो outer structures है वो कैसा दिखता है, that is called forms. And logy is a word which is related to logos. logos मतलब होता है जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, logy का मतलब, so logy का मतलब होता है logos, and logos word is also related to study, यानी logos का मतलब होता है स्टडी करना किसी भी चीज का, but mostly we have to study the forms, appearances, structure. हम किसी भी plants के जो outernal या जो हम बोलते हैं external स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स के, उसका हम स्टडी करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है,
उनका दिखने का जो पैटर्न है, लेटरल है, एक्सियल है, कैसा है, उस फॉर्म को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अ डिटेल वर्जन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी प्लांट्स. इस प्लांट्स में हमको सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किसी भी प्लांट्स का कैसे करते हैं. सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द एक्सटर्नल and internal appearances of any flowering plants, that is called morphology and anatomy. Okay, so first we are going to discuss the most important, the study of external and structures of plants, mostly the study of external structure of any plant, that is called morphology. ठीक है, morphology का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पौधे का एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, नॉट इंटरनल. इंटरनल करेंगे तो वो एनाटॉमी होता है, एंड मोस्टली वी हैव टू स्टडी एनाटॉमी इन प्लांट्स आल्सो, क्योंकि जब भी हम बॉटनी सेक्शंस को डिटेल से पढ़ते हैं तो बॉटनी सेक्शंस में मैक्सिमम आपके प्लांट्स आते हैं और जूलॉजी सेक्शन में मोस्टली आपके एनिमल्स आते हैं. ठीक है, सो बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बॉटनी में बटा हुआ है, जूलॉजी में जितने भी प्लांट्स कैटेगरी हैं सब बॉटनी में आते हैं. बॉटनी में भी एनाटॉमी है, एलएस स्ट्रक्चर्स है, टीएस है, ट्रांसेक्शन है, बहुत सारे ऐसे वर्जन्स हमको देखना पड़ेगा जो कि एनाटॉमी कहलाते हैं. बट यहाँ पे जो हमको देखना है, वी हैव टू सी द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट्स. ठीक है, ये किसी भी प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाते हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, it makes easy to understand their classification. Why we study the morphological structure? हम किसी भी plants का morphological structure क्यों पढ़ते हैं? So by this we can understand easily the exact classification of any organisms of related to plants, not animals. इस मॉर्फोलॉजिकल स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी प्लांट्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में कैसे हुआ है और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट्स है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट्स. इसलिए हम किसी भी प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं. ठीक है, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट बिफोर स्टडी वी हैव टू डिस्कस दैट इन दिस चैप्टर, सपोज दिस इज द प्लांट सेक्शन. ठीक है, दिस इज द प्लांट सेक्शन और ये जो है ये रूट्स है. ओके, एंड जनरली वी नो दैट द रूट्स आर जनरली बिलो द अर्थ. ठीक है, सो दैट इज द रूट पोर्शन. सो मोस्टली अगर हमको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, सो डिस्कशन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा रूट के ऊपर है, बिकॉज रूट इज द बीनीथ पोर्शन ऑफ एनी प्लांट. जो रूट होते हैं वो किसी भी प्लांट्स के बीनीथ पोर्शंस होते हैं, यानी सबसे लोअर पोर्शन होते हैं जिसे हम रूट कहते हैं. एंड रूट एंड स्टेम, जो रूट और उसके बाद का जो एरिया बचता है दैट इज कॉल्ड स्टेम. ठीक है, सो जो रूट और स्टेम होते हैं, these are the basic part of the any plants. ये किसी भी plants के सबसे basic parts होते हैं, because plants are generally designed in the form of leaves. plants में leaves होगा, flowers होंगे, seeds होगा, ovary होगा. ठीक है, बहुत सारी चीजें होते हैं. अगर फ्लावर को देखोगे तो आप, ठीक है, सॉरी फ्लावर की बात करते हैं हम लोग, तो उनमें हमको एंथर देखने को मिलेगा, स्टिग्मा देखने को मिलेगा, स्टाइल देखने को मिलेगा, पेटल्स देखने को मिलेंगे, सेपल्स भी देखने को मिलता है. ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी सेम वही चीजें हमको देखने को मिलेगी. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में भी फ्लावर होगा. सो प्लांट्स के साथ साथ हमें फ्लावर देखने को मिलेगा, इनके ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, लीव्स देखने को मिलेंगे और इनके जड़ वगैरह भी हमको देखने को मिल सकते हैं अगर वो बाहर आ चुके हैं. सो इन दिस वी हैव टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रूट एंड स्टेम. बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, the roots are generally present beneath the stem portion. stem के नीचे वाला जो portion होता है, जो mostly it is dipped into the soil, that is called root. जो पूरी तरीके से मिट्टी में covered होते हैं, इसे हम root कहते हैं. and root is the highly developing part of any plant. अगर किसी भी plant की बात करते हैं तो root जो होते हैं वो बहुत ही highly developing प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू स्टडी द डिटेल वर्जन ऑफ रूट. रूट को हमें बहुत ही डिटेल वर्जन से देखना है. व्हाई? बिकॉज रूट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट्स आल्सो. सो फर्स्ट, रूट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट दैट रिमेन इनसाइड द सॉइल. रूट
प्लांट्स का एक ऐसा पार्ट है जो मोस्टली सॉइल के अंदर ही रहता है। सॉइल के अंदर मतलब बीनीथ द स्टेम, स्टेम के नीचे, यानी जो सॉइल वाला जो पोर्शन है, सपोज दिस इज द सॉइल, ये पूरा का पूरा सॉइल है, और इस सॉइल में जो भी पोर्शंस निकले हुए हैं दैट इज कॉल्ड द रूट। अब रूट की बात करते हैं तो जनरली रूट के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। रूट में भी टैप रूट, रूट में भी फाइब्रस रूट, रूट में भी एडवेंशियस रूट, बहुत सारे रूट्स होते हैं। टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होते हैं, एडवेंशियस रूट्स होते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्टली रूट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ एनी प्लांट दैट रिमेन्स इनसाइड द सॉइल, जो कि हमेशा सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, एंड फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ रेडिकल ऑफ सीड। जो भी सीड होते हैं उनकी जो रेडिकल निकलती है, सपोज ये एक सीड है, सीड की जो रेडिकल निकलेगी एज अ फॉर्म ऑफ सीडलिंग, दैट टाइम द रूट कम्स फ्रॉम दैट पोर्शन। यहाँ से जो है, जब हम किसी भी पौधे का जो सीड है, जनरली जब हम उसको मिट्टी में जब रखते हैं, जनरली आफ्टर 4 to 5 days या 6 days व्हेन द सीड्स बिकम ब्रस्ट, जब सीड फटता है आफ्टर द डॉर्मेसी पीरियड के बाद, तो उसमें क्या होता है कि सीड से जो है ना रेडिकल पोर्शंस के फॉर्म में रूट्स जो है बाहर आने लगते हैं, और ये एज अ सीडलिंग के फॉर्म में छोटे से एक पौधे का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग ऑल्सो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रूट्स के लिए, ठीक है। सो रूट्स के बारे में हमने ये देखा कि रूट्स आर जनरली फाउंड generally in the soil, and they are totally fixed in the soil, and the growth part generally takes from this portions, ठीक है। so after that we have to discuss some more features of roots। अब हमें ये देखना है कि roots के generally features कौन कौन से हैं, ठीक है। so we have to study the approx 7 features of roots which is most essential for your exams, okay। so first one is the features of root की बात करते हैं। it is a descending axis of the plant and develop from the radicle। generally हमने radical देखा, we have planted a new seed जो है डॉर्मेसी पीरियड के बाद जब वो बाहर आते हैं, उनमें से छोटे छोटे से रेडिकल्स बाहर आने लगते हैं। सो इट इज द डिसेंडिंग एक्सिस। डिसेंडिंग का मतलब होता है जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे की तरफ जाते रहते हैं, इसी को हम डिसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज के नीचे की तरफ जाना। जब रूट्स डिसेंड होने लगते हैं, जब काफी नीचे आने लगते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लांट, यानी किसी भी प्लांट के एक्सिस से काफी नीचे आएंगे, दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग एंड डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। और ये किससे डेवलप होते हैं? ये एक रेडिकल से डेवलप होते हैं, और रेडिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सीड। रेडिकल जो होता है किसी भी सीड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट एज दे रिमेन इन अ डार्क, ज्यादातर जो सॉइल होते हैं वो आपके जनरली अर्थ के नीचे सराउंडिंग में बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो सराउंडिंग में बेस्ड होने के कारण मोस्टली दे डोंट गेट प्रॉपर लाइट, इन्हें प्रॉपर लाइट मिल नहीं पाती है, सो दे रिमेन ऑलवेज एज अ डार्क मीडियम। सो इनके पास हमेशा वो डार्क मीडियम बना रहता है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर लाइट, सनलाइट वगैरह इनको कुछ नहीं मिलता है, सो दे आर कलरलेस। इस कारण से ये कलरलेस होते हैं, एंड मोस्टली सम ऑफ देम आर ब्राउन इन कलर, या तो कलर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो कलर भी होगा तो उनमें एक वर्जन का होगा, या तो ब्राउन होगा। समटाइम्स दे बिकम हार्ड एंड बिकम एज अ ब्लैक आल्सो। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर के भी फॉर्मेशंस में आ जाते हैं। सो व्हाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन दिस दे रिमेन डार्क इन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दे स्पेंड देयर होल लाइफ थ्रू आउट। जब तक इनका लाइफ स्पेन चलता है तब तक ये हमेशा सॉइल के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि जनरली वी नो दैट रूट इज द बीनीथ पार्ट ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट का अगर सबसे लोअर पोर्शन की हम बात करते हैं तो वो हमारा रूट्स होते हैं, और रूट्स मोस्टली एक डार्क एरिया में रहते हैं, मतलब सॉइल के पास होते हैं, और सॉइल जो है जनरली इनको पूरी तरीके से पैक करके रखते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता, जिस कारण से इनका जो कलर है वो हमेशा डार्क बना रहता है। और मोस्टली अगर कलर होते भी हैं तो जनरली इट अपीयर्स एज अ ब्राउन इन कलर, तो उनमें जो कलर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन। आफ्टर दैट roots bear unicellular root hair। generally every roots has a unicellular root hair। root के खुद के भी hairs होते हैं। generally roots are just type of structures are there on the upper side of root। किसी भी root की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर the unicellular रूट हेयर्स आर फाउंड, इनके ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसी भी सिस्टम के लिए। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूट्स। रूट्स यूजुअली लैक बर्ड्स, लेकिन रूट्स में बर्ड्स नहीं होते हैं। बर्ड्स का मतलब हमने देखा बडिंग, लाइक वी हैव सीन इन हाइड्रा, जैसे बर्ड्स होते हैं,
इस टाइप के बर्ड्स। तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं जनरली प्लांट्स में हो सकते हैं, बट दे आर एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में ये सारे बर्ड्स जो हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। So after that we have to study some more detailed function. Roots are devoid of nodes and internodes. As we have seen the न्यूरॉन में हमने देखा है नोड्स बने होते हैं बीच बीच में, जॉइंटेड पार्ट्स होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं। सो जनरली रूट्स डिवॉइड, डिवॉइड मतलब होता है किसी चीज की प्रेजेंस ना होना, ठीक है, यानी अब्सेंस होते हैं। सो इन द रूट सेक्शन देयर इज अ कंप्लीट डिवॉइड ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो हमेशा अब्सेंट होते हैं, ठीक है। After that, we are going to study the most important functions of roots. Generally lack leaves. अगर हम बात करते हैं तो roots generally found in the soil medium, so they don't possess the leaves. इनमें पत्तियां नहीं होती roots में, ठीक है, as we know very well. And last portion we are going to discuss the apical part of root has a root cap. जो सबसे लोअर पोर्शंस होता है किसी भी रूट का, उनके पास खुद की एक रूट कैप होती है जो कि उन्हें नरिशमेंट करने की काम करता है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं ये रूट्स की, तो रूट्स के यहाँ से एक स्पेशल टाइप का कैप होता है जो कि इनको जो है ना नरिशमेंट और कवरिंग करने के काम करते हैं, ठीक है। ये एक रूट कैप होता है। वी विल डिस्कस द डिटेल फंक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट ऑफ एनी मॉर्फोलॉजिकल और फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम किसी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो रूट्स के बारे में इतना जानना सफिशिएंट है। एंड आफ्टर दैट रीजंस पार्ट्स ऑफ रूट। अगर हम बात करते हैं रीजंस यानी रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, सो रूट कैप होते हैं। सो as we have discussed in next video we will discuss some more detailed portions of root cap. root cap के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे because this is the introduction part of morphological of flowering plants, ठीक है। so root caps होते हैं, इनमें रूट ऊपर की तरफ रहते हैं, मतलब इनके सबसे नीचे पोर्शंस में इनके ऊपर से प्लांट्स अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है इसको हम रूट कैप कहते हैं। आफ्टर दैट द रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इनकी खुद की एक सेल डिवीजन होती है जो हमेशा डिवाइड कर करके अपने संख्या को या अपने नंबर ऑफ रूट्स को ये हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली मैनर में ग्रोथ करते रहते हैं। और जो रूट्स होते हैं वो काफी डीप चले जाते हैं, ठीक है। सो इतने डीप होते हैं कि उनको निकाल पाना विच इज इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट इनकी इलोंगेशन होती है। सेल डिवीजन जब होता है किसी भी सेल में, वेदर इट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें सेल इलोंगेशन होता है। जैसे हमने अमीबा में देखा है। सो अमीबा का सपोज एक सेल है, ठीक है, अब ये डिवाइड हो गई, ये सेल इस फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। एक ये सेल का इलोंगेशन हुआ, ये सिंगल सेल था, यहाँ पे सेल का इलोंगेशन हुआ। आफ्टर दैट ये सेल जो है डिवाइड होके सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन, कंप्लीट सेल डिवीजन। जैसे हमने अमीबा में देखा है कि एक पेरेंट्स एक सेल होता है, ये सेल इलोंगेट होके थोड़ा सा डिवीजन होगा यानी स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद दो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, इनके दो गैमेट बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। सो वैसे रूट्स में भी हमारे इलोंगेशन के प्रोसेस होते हैं जो जनरली इलोंगेट होकर काफी बड़े दिखने लगते हैं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट एक मैच्योरेशन यानी मैच्योरिटी स्टेज होती है प्लांट्स में, यानी प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं जनरली इट पोजेस the mostly the maturity stage where it can never grow, जहां से वो बढ़ना बंद हो जाता है और उसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, that is called the maturation, ठीक है। so in next phases we will study the detailed portion of root cap, cell division region and elongation or maturation. root cap जो कि रूट के पोर्शंस में पाया जाएगा, सेल डिवीजन, सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं, whether it is plants और एनिमल्स, अगर वो खत्म भी हो जाएंगे तो भी वापस रीजनरेट होकर डिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे हमारे बॉडी में भी हमने देखा है इलोंगेशंस होगी, उनमें स्ट्रेचेबल सिस्टम्स आएगा, काफी दूर तक फैलेंगे वो। आफ्टर दैट मैच्योरिटी होती है जिसको मैच्योरेशन कहते हैं, एक ऐसा स्टेज जहां से उनका लाइफ स्पैन तो चलता रहता है लेकिन उनके अंदर की मैच्योरिटी रुक जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं अप्रॉक्स 21 to 25 तक उनकी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ होती है वो कंपलसरी हो जाती है और उसके बाद उनकी जो मैच्योरिटी स्टेज है वो रुक जाती है, ठीक है। So that is all about the morphology of flowering plants. Till then I have given you only one homework. You have to give me the 10 examples of gymnosperm and angiosperm plants. Okay, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के प्लांट्स के आपको आंसर्स जो है मुझे 10-10 एग्जांपल्स भेजने हैं एंड दिस इज द लास्ट होमवर्क। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सम डिटेल पोर्शन ऑफ रीजन या फिर पार्ट्स ऑफ रूट। टिल देन व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, यू हैव टू स्टडी वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।